Good morning, friends. Now we will see the weightage of the standards for the examination, right? Okay. So API 653 full standard is covered for the examination and it weights 50 percentages, right? So anyhow we have to go for API 653 100% coverage in very well manner. Clear? Now second standard, very important, is API 650. It is construction code and that is also very important for our examination, but the whole standard is not important as per BOK from API. Clear? Okay. Now what happens? 100% of API 653 and some of the percentage of API 650 that we will discuss in the another chapter of our lecture, right? So these two standard covers 80 percentage of the questions. Clear? Now another standards, maybe API section 5, API section 9, and some more standards maybe for quoting that API 71 and rest all will cover only 20 percentages, but that are also very important because to get 100% pass the examination you need 87%, right? So after getting in these two standards also, if you will cover full course, then also I think you cannot score 100 out of 100, means all 80 percentage you cannot cover. So other standards are very helpful to get clear the examination, right? So we cannot bypass any of the standards. Clear? Okay, now you got to understand the weightage of the codes and standards for the examination. Clear? Okay. Now we are going to start our chapter. Clear? So API 653. The heading is tank inspection, repair, alteration and reconstruction. Clear? Okay. Now we will understand the word meaning of the words. Now tank inspection. Okay, tank inspection. We have a lot of type of inspections. For example, inspection in construction stage. Clear? Okay. So construction stage, second one is when it is in work or in process, that is called in service inspection, right? So this standard actually tank inspection means in service inspection. Okay, now we will understand what is in सर्विस इंस्पेक्शन. ठीक है? ओके, तो इन सर्विस इंस्पेक्शन क्या है? आफ्टर कंस्ट्रक्शन and before retirement, the time period of the tank in which it works or it is used in process, it is called in service period. And in that time, whatever inspection we are going to perform, whether it is NDT, whether it is visual, whether it is shutdown work, any of the inspection we are going to perform, that is called in service inspection. Okay, the definition is in two manners. One is after fabrication, means after construction, and before retirement, it is called in service inspection. Second one is the same one only, in process, but before retirement, after construction, it is also called the same in service inspection, right? And third, now the tank is abandoned in the location for a certain period of time, but it is not in use, but it will be in use after a certain time, means it is not retired, but it is abandoned for a certain period of time, it is empty for a certain period of time. And sometimes it happens that okay, for a certain period of time this tank is not under use, then another tank is under use. So after, when it will be not in use, maybe there is some repairing or inspection, at that time what they will do, they will start using this tank, and at that time that tank will be empty.
for inspection and blah 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 purposes. So this tank is also called whatever inspection we are doing or whatever the time period is. Time period is in service and the inspection related is in service inspection. Clear? So now you got to understand three types. Okay. After construction, before retirement, it is in service period, right? And one more another formula is there. So anyhow means round they are asking. Clear? So one is clear, tank inspection. Especially this standard is made for or organized for in service inspection, right? Tank inspection means this for API 653. Now repair. Okay, after inspection what you are going to do? Either you are going to accept the condition or you are going to reject the condition. If you are going to accept the condition means okay, no repair, no alteration, no nothing is required, right? But if you are not accepting the current condition means you have to either repair or either you have to alter the conditions. So repairing means what? अब जो भी काम करता है, वेल्डिंग वर्क हो, कटिंग हो या एनी वर्क, राइट, किस चीज़ के लिए, तो उसका जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए आप जो भी काम करता है, लेकिन कौन सा काम, सेम उसका डिज़ाइन कंडीशन मेंटेन होना चाहिए. क्लियर? तो सेम डिज़ाइन कंडीशन के लिए हम लोग उसके अंदर जो भी फेर फार करता है, एनी, दैट इज़ कॉल्ड रिपेयर. क्लियर? और रिपेयर दूसरा भी होता है. फॉर एग्जांपल आपने जो भी उसका बेस प्लेट है उसका थिकनेस चेंज कर दिया, या उसका जो नोज़ल्स है उसका डायमीटर चेंज कर दिया, या उसके अंदर आप क्या किया, पैड लगा दिया. बिफोर पैड नहीं था, बाद में आपने पैड लगा दिया. क्लियर? सो एनी दिस टाइप ऑफ एडिशनल मटेरियल और बियॉन्ड द लिमिट हम लोग जो भी चेंजेस करता है जिसकी वजह से उसका डिज़ाइन कंडीशन में या उसका एनी ऑफ द कंडीशंस उसके अंदर कोई भी चेंजेस आता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्टरेशन. क्लियर? सो नाउ डिफरेंस बिटवीन रिपेयर एंड ऑल्टरेशन. सो रिपेयर क्या है, सेम डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स उसका मेंटेन होगा और उसके अंदर हम लोग जो भी चेंजेस करता है, चेंजेस मीन्स ओनली वी आर रिप्लेसिंग द पार्ट और वी आर मेंटेनिंग द सेम इंटीग्रिटी, इट इज़ कॉल्ड रिपेयर. लेकिन हम लोग उसका इंटीग्रिटी चेंज करता है, इसका डिज़ाइन पैरामीटर्स चेंज करता है, देन इट इज़ कॉल्ड ऑल्टरेशन. क्लियर? एंड रिकंस्ट्रक्शन. ओके, नाउ व्हाई वी नीड रिकंस्ट्रक्शन? तो रिकंस्ट्रक्शन हमको उसके लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल अभी रीलोकेशन. ओके, रीलोकेशन और रिकंस्ट्रक्शन एक्चुअली अप्रॉक्स पर्यायवाची जिसको कहते हैं, सेम वर्ड्स है. तो जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके पहले उसको बोलेगा रीलोकेशन. तो रीलोकेशन में क्या हो रहा है कि भाई आपका जो टैंक है उसको हम लोग क्या कर रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रीलोकेशन. फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, फ्रॉम वन ट्रेन टू अनदर ट्रेन. और समटाइम्स क्या होता है, कोई भी टैंक यूज़ में नहीं आ रहा क्योंकि उसने डिज़ाइन पैरामीटर्स जो ऑपरेशन का है वो चेंज हो गया है, एनी हाउ एनी ऑफ द रीजंस वो टैंक यूज़ में नहीं आ रहा है. तो क्या करता है, ओनर उसको सेल कर देता है. और सेल करने के बाद में जो उसका नया ओनर है, he will take the tank and he will install it in his own refinery or own circumferential area, right? So its location is going to change, but its designing parameters, construction parameters not is going to change, right? तो उसको क्या बोलते हैं, रीलोकेशन. अभी रिकंस्ट्रक्शन, अभी सेम थिंग है, या तो उसको बेचा गया है या तो उसको नया लोकेशन पे लेके जाना है, एनी नया ट्रेन में लेके जाना है या नया रिफाइनरी में लेके जाना है, मे बी सेम ओनर मे बी डिफरेंट ओनर, लेकिन उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट सो इजी. तो उसको एनी हाउ क्या करना पड़ रहा है, कटिंग करना पड़ता है. एनी हाउ वर्टिकल कटिंग हो या हॉरिजॉन्टल कटिंग हो, दैट वी विल सी व्हाट टाइप ऑफ कटिंग्स इज अलाउड एज पर आवर स्टैंडर्ड, दैट वी विल सी लेटर ऑन. तो अभी क्या हो रहा है, उसको एनी हाउ उसको कटिंग करना पड़ रहा है इनटू पार्ट्स, इनटू पीसेस, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं. उसको कटिंग भी क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा है और उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करने के लिए पॉसिबल नहीं है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द टैंक. सो हम लोग उसको क्या करेगा, कट इट इनटू ट्रांसपोर्टेबल पार्ट्स, ट्रांसपोर्टेबल साइज टू गेट द साइज.
आफ्टर देन क्या करेंगे, उसको नया लोकेशन पे ले जाके उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर? सो उसके अंदर बहुत सारा चेंजेस होता है, बहुत सारा नया नया रूल्स है, दैट वी विल सी लेटर ऑन। क्लियर? सो अभी जो हम लोग देखेंगे इस कोड के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टैंक इंस्पेक्शन, सेकंड वन इज रिपेयर, अल्टरेशन थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, और रिकंस्ट्रक्शन बहुत कम इम्पोर्टेंट है। ये मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ, क्योंकि ये अल्टरेशन और रिकंस्ट्रक्शन ये रेगुलर होने वाला प्रोसेस नहीं है, 10 साल में 20 साल में या कभी नहीं होने वाला प्रोसेस है। क्लियर? सो यदि ये रेगुलर होने वाला नहीं है, इसीलिए इसमें से क्या होता है, क्वेश्चंस कम आता है। लेकिन रेगुलर होने वाला जो भी आइटम्स है, जो भी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल टैंक इंस्पेक्शन, ये हमको रेगुलर करना है, तो उसमें से क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा आता है। एंड रिपेयर ये भी रेगुलर होने वाला प्रोसेस है, जिसमें से भी क्वेश्चंस ज़्यादा आता है। क्लियर? सो मैं आपको समझाऊंगा साथ में व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, व्हाट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जामिनेशन। तो उसमें क्या है, क्लोज बुक एंड ओपन बुक, दो तरह का एग्जामिनेशन होता है। अभी क्लोज बुक में क्या आता है, क्लोज बुक में वो चीज़ आता है जो आपको रिमेंबर करने का ज़रूरत है, या आपको जिस चीज़ का साइट पे ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्जांपल टॉलरेंसेस। क्लियर? तो आप साइट पे गए हैं, आप इंस्पेक्शन करते हैं, अभी उसके अंदर जो भी टॉलरेंस आया, आपने प्लम्बनेस चेक किया, और प्लम्बनेस में फॉर एग्जांपल आपको 24 25 mm जो भी आया, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट यू हैव टू गिव डिसीजन, ओके, वेदर इट इज़ रिजेक्टेड, वेदर इट इज़ एक्सेप्टेड, वेदर इट इज़ रिकमेंडेड फॉर रिपेयर। क्लियर? तो जो ऐसा चीज़ है जिसका हमको डिसीजन ऑन द स्पॉट साइड पे देना है, मीन्स जो पॉइंट्स हमको रिमेंबर रखने का ज़रूरत है, जो पॉइंट्स हमको याद रखने का ज़रूरत है, वो पॉइंट्स क्लोज बुक में आता है। क्लियर? लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा होता है जो हम लोग ऑफिस में जाके स्टैंडर्ड को रेफ़र करके किसी अपना सीनियर के साथ या किसी अलग डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करने के बाद में जो हम लोग डिसीजन देते हैं। क्लियर? वो जो क्वेश्चंस हैं वो ओपन बुक में आते हैं। क्लियर? तो ओपन बुक के लिए हमको कौन सा क्वेश्चन समझना है, जैसे कुछ कैलकुलेशंस हो गया, ठीक है, 90% ऑफ द कैलकुलेशंस विल बी ओपन बुक। कुछ ओपन बुक में क्या होता है, सेम चीज़, जैसे कोई भी पैरामीटर्स है, हमने चेक किया, लेकिन ऑन द स्पॉट उसका डिसीजन देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्कर्स का कोई मतलब किसी भी चीज़ से उसको काम को हैरेस नहीं कर रहा है, जो हम लोग ऑफिस में जाके आराम से डिस्कस करके आंसर दे पाएगा। क्लियर? तो अभी मालूम आप चल गया होगा आपको कि हमको ओपन बुक में क्या तैयारी करनी है और क्लोज बुक में क्या तैयारी करनी है। क्लियर? ओके, नाउ वी विल गो फॉर स्पेशल नोट्स, राइट? तो स्पेशल नोट्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्लियर? अभी आगे चलेंगे हम लोग। ओके, फॉरवर्ड में भी यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सो वी विल गो वंस मोर। Okay, so now contents is there, right? So contents you can go ahead, even you can pause this one and you can go through. All are very important, right? Each and every word is important of this code and standard. Clear? Okay. Now we will see this one. This one बोलेगा तो फर्स्ट चैप्टर स्कोप में सबसे पहले ये है कि भाई प्रेसिडेंस, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो क्वेश्चंस में ये है कि भाई 12C इज प्रेसिडेंस बाय 650। क्लियर? मतलब 12C को किसने रिप्लेस किया, तो 650 ने रिप्लेस किया, ये हमको याद रखना है। 12C इज इक्वल टू 650। कुछ सालों पहले 12C हम लोग यूज़ करता था सेम काम के लिए, अभी हम लोग 650 यूज़ करता है सेम काम के लिए, मीन्स फॉर कंस्ट्रक्शन। इतना याद रखना है, जहाँ पे 12C आएगा वहाँ पे आंसर में 650 ज़रूर होगा, जो हमको याद रखना है। क्लियर? अभी सेकंड वन इज़ API 579, सेकंड वन इज़ ASME FFS-1। तो 579 फिटनेस फॉर सर्विस, ये भी हमको याद रखना है। क्लियर? फिटनेस फॉर सर्विस ये भी याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है।
नाउ कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन के लिए ये लोग क्या बोल रहा है? ज्यूरिडिक्शन में ये बोलता है कि यदि जहाँ भी हमारे कोड के साथ यानी कि API 653 के साथ में ज्यूरिडिक्शनल कोई भी मतलब रेगुलेशंस है, वो यदि कन्फ्लिक्ट करता है तो क्या होगा? ज्यूरिडिक्शंस जीतेगा। ठीक है, हमको वो फॉलो करना है। लेकिन फिर ये लोग एक सेंटेंस और भी लगाता है। क्या लगाता है? कि फॉलो द स्ट्रिक्टर वंस। यदि API 653 ज़्यादा स्ट्रिक्ट है आपका रेगुलेटरी स्टैंडर्ड से या रेगुलेटरी स्पेसिफिकेशन से, देन वी हैव टू फॉलो दिस वन। और यदि रेगुलेटरी जो स्पेसिफिकेशन है वो ज़्यादा स्ट्रिक्टर वन है, देन वी हैव टू फॉलो दैट वन। क्लियर? अभी now there is nothing important till here, right? Okay, now सेक्शन 2 रेफरेंसेस। ओके, तो रेफरेंस में ये है स्टैंडर्ड में, जैसे कि हम लोग टैंक का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टैंक के अंदर जो भी चीज़ यूज़ होती है या जो भी स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल की API 579 फिटनेस फॉर सर्विस सब में यूज़ होता है, ये पूछने की पॉसिबिलिटीज़ है। 580 सब में यूज़ होता है। 620 सबको मालूम है तो जनरल है। 650 भी मालूम है। 651 ये भी इम्पोर्टेंट है। 652 ये एग्ज़ाम के पॉइंट से भी ये कोड आ रहा है हमारा इसमें। API 651 कैथोडिक प्रोटेक्शन भी हमको स्टडी करना पड़ेगा। 652 भी स्टडी करना पड़ेगा। 2000 की ज़रूरत नहीं है। 2015, 16, 2201 नहीं ज़रूरत है। और सेक्शन 8, सेक्शन 9 एग्ज़ाम पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। TC1A भी इम्पोर्टेंट है, राइट? तो ये हमको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है और वो ज़्यादा नहीं है, हम लोग एक नज़र डालेगा, दैट इज़ सफिशिएंट, राइट? और ये जो है ANSI AWS Z49.1 दैट इज़ फॉर सेफ्टी, राइट, इन वेल्डिंग एंड कटिंग एंड अलाइड प्रोसेसेस, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। 100% नहीं है लेकिन चांसेस है। क्लियर? अभी हम लोग एक और काम करेंगे, दैट इज़ डेफिनेशन। सो आई थिंक डेफिनेशंस इज़ अ बिग चैप्टर। सो ये हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम जब ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो कौन सा वर्ड आता है उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग, वो हमको क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग इसको सेकंड चैप्टर में कवर करने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने सेक्शन 1, सेक्शन 2 कवर कर लिया है, ठीक है। थैंक यू। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, यदि आप मेरा वीडियोस देख के एग्ज़ाम में जाएंगे, मीन्स खाली देख के नहीं, आपको याद भी करना है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। सेम चीज़ आप यदि 36,000 का कोर्सेस लेंगे या कोई भी ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं या कोई भी क्लासेस, एनी ऑफ द क्लासेस में आप जाते हैं, तो आपको इससे अच्छा कोई नहीं सिखाएगा, दैट इज़ माय गारंटी, राइट? और मेन चीज़ क्या है कि आपको तो कोई सिखाएगा नहीं इतना अच्छा, क्योंकि वो लोग 1 वीक में 11 स्टैंडर्ड्स कवर कर रहा है। अब 8 दिन में 11 स्टैंडर्ड कवर करना है, मतलब आप सोचिए, या तो उनका स्पीड ज़्यादा होगा या तो वो लोग पूरा कवर अप नहीं करेगा। क्लियर? ओनली इम्पोर्टेंट आपको बताएगा, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बताया वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा। तो बेटर हम लोग खुद पूरा स्टडी करेंगे, उसके बाद में हम लोग खुद इम्पोर्टेंट निकालेंगे, हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट किस चीज़ में काम लगता है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट काम लगेगा ओनली फॉर क्लोज बुक, क्योंकि उसमें आपको याद रखना है। ओपन बुक के लिए कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लोग कोई भी कॉर्नर से उठा के क्वेश्चंस पूछ सकता है और पूछता ही है। क्लियर? तो ओपन बुक के लिए हमको टोटल बुक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन या कोई भी वर्ड हमको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर में ये लोकेशन पे मेरे को ये वर्ड देखने को मिलेगा। भले याद नहीं है लेकिन हमको कम से कम अंदेशा होना चाहिए कि यहाँ पे मिल सकता है ये स्टैंडर्ड में, क्योंकि आपको 11 स्टैंडर्ड में से वो क्या वर्ड पूछ रहा है आपको 11 स्टैंडर्ड में से कवर अप करना पड़ेगा। तो हमको मालूम होना चाहिए ये स्टैंडर्ड में ये चैप्टर में ये आ सकता है, कम से कम इतना मेंबर एंड पावर होना चाहिए। क्लियर? तो क्लोज बुक का तैयारी तो मैं आपको पूरा करवा देगा, और ओपन बुक का तैयारी भी मैं आपको 99% करवाएगा, 1% आपका गुड लक। ठीक है? तो थैंक यू फॉर दिस चैप्टर, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।